All right, so now let's finally start with cockroach. अगर cockroach की बात करूँ, so what is the species that we will be discussing? We will be discussing the most common species of cockroach जो इंडिया में पाई जाती है, which is Periplaneta americana. ठीक है, Periplaneta americana. Now just like Periplaneta americana की स्पेसिफिकली बात करूँ तो यूजुअली आपने अपने अगल बगल में जो कॉकरोचेस देखे होंगे तो मोस्टली रेडिश ब्राउन इन अपीयरेंस ऐसे ही दिखते हैं, राइट? और बट एक्चुअली में आप देखोगे ना, Periplaneta americana comes in huge shades and colors. ठीक है, you will see green color cockroaches, you will see yellow color cockroaches. I've also added some diagrams, some beautiful diagrams throughout the lecture to support my explanation. So stay tuned and listen carefully. देखो, just like we did a general classification of the frog, we'll also classify the cockroach. ठीक है, we'll also discuss the general classification of cockroach. तो हम सबको पता है कि cockroach at the end of the day it's an animal, right? So it belongs to which kingdom? It belongs to kingdom Animalia. अब kingdom Animalia में कई सारे phylums हैं, ठीक है, and it belongs to the largest phylum of kingdom Animalia, which is Arthropoda, right? Over 2/3 of all the named species are insects, right? Arthropoda के largest phylum होने का एक बहुत major reason है कि Arthropoda में आते हैं insects, ठीक है, उसमें आती है class insecta, and insects are everywhere, right? NCERT में data क्या mention है? फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो बच्चा ऑर्डर होता है इनका ब्लैटोडिया. द ब्लैटोडिया, दे बिलोंग टू द ऑर्डर ब्लैटोडिया, एंड ब्लैटोडिया इज़ द ऑर्डर. और फैमिली की अगर बात करूँ तो फैमिली इज़ ब्लैटिडे. फैमिली इज़ ब्लैटिडे. ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ लिल एक्स्ट्रा फॉर द क्यूरियस हेड्स आउट देयर, बट ऑल्सो नॉट गिवन इन NCERT, so there are faint chances of this being asked in the exam, faintest chances, right? So there are hardly any chances. So you can completely skip it, but just in case you want to know the proper exact classification, so the order is Blatodia and the family is Blatidae. I hope that is clear to everybody. उसके बाद हमारे पास जीनस आ जाती है. जीनस तो हमें पता ही है, Periplaneta, and the species is Americana. This is a binomial nomenclature, right? जो binomial nomenclature में the first part of the name represents the generic or the binomial classification, the first part of the name represents the genus, whereas the second half represents the species as a specific epithet. ठीक है, तो genus होगी Periplaneta, species होगी Americana. I hope that is clear to everybody. उसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूँ उसके general characteristics, so what all are the general characteristics that you see? Periplaneta Americana जो होते हैं तो usually blackish और brownish bodied animals. Usually आपने अपने अगल बगल में भी जो cockroaches देखे होंगे थोड़े blackish brownish वो reddish कलर के appearance होते हैं. Usually blackish brownish bodied होते हैं, ठीक है, और इनका साइज़ रेंज करता है एज पर NCERT फ्रॉम 1/4 इंचेस विच इज़ a quarter inches to 3 inches, राइट? 1/4 इंचेस से लेके 3 इंचेस तक. अब 1 इंच कितना होता है बहुत बच्चों को नहीं पता है. सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट डाउन दिस फिगर. 1 इंच होता है बच्चा लगभग 2.5 सेंटीमीटर्स के आसपास. सो इट्स 2.54 टू बी मोर प्रिसाइज. 1 इंच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.54 सेंटीमीटर्स, राइट? सो Periplaneta americana ब्लैकिश ब्राउनिश बॉडीड एनिमल्स हैं. उनका साइज़ रेंज करता है फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस. उसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूँ कि वेयर एग्जैक्टली आर दे लोकेटेड, तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं. स्पेसिफिकली वी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्पीशीज Periplaneta americana. Periplaneta americana यूजुअली ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं? विच आर प्रेजेंट नियर द इक्वेटर. वी आर ऑल अवेयर कि हमने जो पूरे अर्थ है उसे अलग अलग सेक्शंस में क्लासीफाई कर दिया. फॉर एग्जाम्पल अर्थ की सेंट्रल एक्सिस से जो एक इमेजिनरी लाइन पास होती है दैट इज़ द इक्वेटर, राइट? फिर यहाँ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है. सो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, दिस रीजन इज़ रेफर टू एज द ट्रॉपिक्स. तो यूजुअली ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं और दे कम इन ह्यूज शेड्स एंड कलर्स एज आई सेड. ठीक है, ब्राइट रेड, येलो, ग्रीन कलर के कॉकरोचेस भी दिखते हैं. इनफैक्ट आई एडेड सम ब्यूटीफुल डायग्राम्स टू शो यू. देखो ये देखो रेड, दिस इज़ रेड कलर कॉकरोच. रेड कलर का होता है, ठीक है, वो रेडिश ब्राउनिश. यू सी प्रॉपर ग्रीन कलर कॉकरोचेस, ठीक है, ग्रीन कलर का Periplaneta americana, ठीक है. जिसको क्यूबन कॉकरोच बोलते हैं टू बी मोर प्रिसाइज. यू सी येलो कलर्ड कॉकरोचेस. सो दे कम इन ह्यूज शेड्स एंड कलर्स, ठीक है, तो काफ़ी कलर्स में भी प्रेजेंट होते हैं. फिर यूजुअली दे आर नॉक्टर्नल एनिमल. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नॉक्टर्नल एनिमल? सी
ह्यूमन बींग्स आर डायोनल। नॉक्टर्नल मतलब होता है जो विच इज़ एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, जो रात में करता है, जो मतलब रात में सब कुछ करता है बेसिकली। प्रिडेट अपना रात में कर रहा है, प्रिडेशन एज इन लाइक बेसिकली फुरेज रात में कर रहा है, तो बेसिकली एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। अब हमारे केस में यूजुअली एज पर द डिज़ाइन ऑफ नेचर वी ह्यूमन्स आर सपोज टू बी डायोनल एनिमल्स, ठीक है। वी आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम, कि हम डे टाइम में ज़्यादा एक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू नाइट। अब लोग बोलेंगे कि नहीं हम तो रात में भी बैठ के पढ़ते हैं। अरे मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करी, मुझे पता है हम सब नहीं, इनफैक्ट कुछ मेजॉरिटी ऑफ अस हमने अपनी स्लीप वेक साइकिल की ऐसी की तैसी मार रखी है, राइट। हम बिल्कुल बॉडी के एंटी सब काम कर रहे हैं। बॉडी में जो भी नेचुरल प्रोसेस है ना, जो भी नेचुरल डिज़ाइन है, हम उसको बिल्कुल काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यूजुअली क्या होता है हमारी बॉडी में पीनल ग्लैंड्स होते हैं। पीनल ग्लैंड्स द सिक्रीट अ हार्मोन विच इज़ रेफर टू एज मेलेटोनिन। आई एम श्योर सबने सुना भी होगा, जिसने नहीं सुना है व्हेन वी डिस्कस द चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तब हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पीनल ग्लैंड्स में यूजुअली एक हार्मोन सिक्रीट करती है विच इज़ मेलेटोनिन, और ये मेलेटोनिन कहीं ना कहीं हमारी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये मेलेटोनिन कब रिलीज़ होता है? रात के समय। सो मेलेटोनिन इज़ बेसिकली रिलीज एज इट गेट्स डार्क। तो जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है ना, मेलेटोनिन का अमाउंट जो होता है वो ब्लड में इंक्रीज होता जाता है। बट हमने क्या कर रखा है, बिकॉज वी आर सो यूज टू दी आर्टिफिशियल लाइट, हम घर पर लाइटें रात में 1-1, 2-2 बजे तक लाइटें जला के रखते हैं, राइट, ठीक है। और मैं उसमें आई एम नॉट जस्ट ब्लेमिंग यू गाइस, इट्स गुड मेजॉरिटी ऑफ इट, इट्स इवन मी समटाइम्स जब हम रात में देर रात तक लाइट जला के रखते हैं। तो ब्राइट लाइट में क्या होता है, ब्राइट लाइट में जो मेलेटोनिन प्रोडक्शन होता है वो ब्लॉक हो जाता है, मेलेटोनिन प्रोड्यूस नहीं होता, नींद ही नहीं आती है। तो पूरी हम कहीं ना कहीं अपनी सिनकार्डियन रिदम को, जो स्लीप वेक साइकिल है, वो पूरा ख़राब कर लेते हैं। तो जो आइडियली वे सपोज टू बी डायर्नल, बट नाउ विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, ठीक है। ये जो होते हैं ये नॉक्टर्नल होते हैं, ये रात में एक्टिव होते हैं। जब उसके बाद अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करूँ तो यूजुअली इनका नेचर कैसा होता है, दे आर ओमनीवोर्स, ठीक है। ओमनीवोर्स होते हैं, मतलब सब कुछ खा सकते हैं। दे कैन फीड बोथ ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे कैन ईट प्रीटी मच एवरीथिंग, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, सब खा लेंगे, जो मिल जाएगा सब खा लेंगे। नखरे नहीं करते आप लोगों की तरह, ठीक है, कि नहीं मम्मी आज ये बना दिया, अरे आज तोरी बनी, आज मुझे ये नहीं खाना, आज मुझे वो नहीं खाना। दैट डज़ नॉट हैपन, दे प्रीटी मच ईट एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद ये कर्सोरियल होते हैं। कर्सोरियल एज इन देखो, कर्सोरियल के आगे मैंने शॉर्ट में लिखा है फास्ट रनर्स। अब देखो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो कर्सोरियल ऑर्गेनिज्म, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कर्सोरियल बोलते हैं तो कर्सोरियल मतलब कि इट हैज़ बीन अडेप्टेड स्पेसिफिकली फॉर रनिंग, ठीक है, कि उसकी बॉडी को ऐसे डिज़ाइन ही किया गया है ताकि वो तेज़ भाग सके, ठीक है। जैसे कि पैंथर ले लो, टाइगर ले लो, यूजुअली दीज आर कर्सोरियल ऑर्गेनिजम्स। कर्सोरियल मीन्स दे आर डिजाइंड स्पेसिफिकली फॉर रनिंग, उनकी बॉडी को बनाया ही ऐसे गया है दैट दे कैन रन। इन द सेम वे कॉकरोच जो है उसकी बॉडी को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है कि इट कैन रन वेरी फास्ट। तो कॉकरोचेस जो होते हैं कर्सोरियल, बहुत तेज़ भागते हैं, ठीक है। कॉकरोच को आप ऐसे पकड़ोगे तो बहुत तेज़ भाग जाता है, अगर आपने कभी देखा हो तो। आई नो मोस्ट ऑफ अस आर आइदर डिस्गस्टेड बाय द साइट ऑफ अ कॉकरोच और आइदर स्केयर, ठीक है। तो यही होता है। फिर उसके बाद ये जो कॉकरोचेस होते हैं बच्चा, दे आर ऑल्सो सीरियस पेस्ट, मतलब इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा सीरियस पेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलाते हैं। दे कंटामिनेट द फूड एंड हाउ एग्जैक्टली डू दे डू दैट, एग्जैक्टली देखो डायरेक्ट वेक्टर्स की तरह काम करें। वेक्टर्स देखो, अब जैसे हमने फीमेल अनोफिलीज होती है, ठीक है, विच ट्रांसमिट मलेरिया, राइट, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे फीमेल अनोफिलीज है वो बेसिकली मलेरिया फैलाती है। फीमेल एडीज़ होती है जो डेंगू, चिकनगुनिया या जीका वायरस, जीका फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये डायरेक्ट वेक्टर्स है। डायरेक्ट वेक्टर ऐसे ये डायरेक्ट पैथोजन को कैरी करते हैं एंड दे काइंड ऑफ इंजेक्ट इन द बॉडी। ये ऐसे डायरेक्ट वेक्टर का काम नहीं करें कि कहीं ना कहीं बीमारी फैला रही है। देखो यूजुअली क्या होता है, ये जो हमारे बॉडी हमारे आसपास से जो कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम बीमारी कर देते हैं, जैसे सैल्मोनेला टाइफी हो गया, इकोलाई हो गया, स्टेफिलोकोकस हो गया, ये बेसिकली सब जगह प्रेजेंट है, फीकल मैटर वगैरह में। तो अब मान लो अगर ये कॉकरोच जाके किसी फीकल मैटर या फीसेस में बैठे तो इसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उसकी पूरी बॉडी पे क्या चिपक जाएगा, इकोलाई, स्टेफिलोकोकस। नाउ इमेजिन दिस कॉकरोच कम्स एंड इट काइंड ऑफ क्रॉल्स ओवर योर फूड, राइट, कि आपके खाने पे चल जाए और आपकी प्लेट वगैरह पे चल जाए, इट क्रॉल्स ऑल ओवर योर फूड। सो व्हाट विल इट डू, इट विल release these staphylococcus and microorganisms on your food and thereby contaminating your food. तो as such इनडायरेक्टली कहते हैं प्रॉपर जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वैक्टर्स की, ठीक है, वो नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं बीमारी तो फैला रहे हैं। इन अ वे दे आर डेफिनेटली कंटामिनेटिंग द फूड एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद इन जनरल आप फाइलम आर्थ्रोपोडा में देखोगे कि जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है द प्रेजेंस ऑफ अ हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनकी जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोड्स की, ठीक है, इट्स कवर्ड विद अ हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनका जो एक्सोस्केलेटन है, तो बाहर की जो बॉडी है तो विंग्स एक है ये, इसमें आप देखो, इसमें आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा इनकी जो बॉडी है। और आपको ये जो
यहाँ पे ऐसे ब्राउन कलर का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक एक्सोस्केलेटन है, कवरिंग है जिसको किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी हुई है। सो बेसिकली इनकी बॉडी पे काइटिन डेपोजिट हो जाता है, एंड काइटिन के डेपोजिशन की वजह से पूरी एक्सटर्नल कवरिंग बन जाती है, विच इज़ रेफर टू एज एक्सोस्केलेटन। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। सो ये था इंट्रोडक्शन टू व्हाट कॉकरोच एग्जैक्टली इज। नाउ लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू NCERT to understand this better. Okay, just give me a moment. Let me adjust the colors and we'll be good to go. Okay, अब अगर बात करें बच्चों कॉकरोचेस की, तो कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ब्लैकिश ब्राउन होते हैं, एंड दे आर इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? क्लास इंसेक्टा, विच कम्स अंडर फाइलम आर्थ्रोपोडा। ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर के कॉकरोचेस दे हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन। तो ब्राइट येलो, रेड, ग्रीन कलर के कॉकरोचेस भी पाए गए हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में। इनका जो साइज़ होता है वो रेंज करता है फ्रॉम 1/4 इंचज़ to 3 इंचज़, और अगर सेंटीमीटर्स में पूछा जाए तो 0.6 to 7.6। काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस इज वेल। ठीक है, अगर मतलब सेंटीमीटर्स में पूछा जाए तो 0.6 to 7.6, इंचज़ में इट्स 1/4 इंचज़ to 3 इंचज़। उसके बाद इनके पास लॉन्ग एंटेने होते हैं, लेग्स होते हैं, दिस फ्लैर एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल विच काइंड ऑफ कंसील्स द हेड। नाउ दिस इज समथिंग दैट विल discuss in detail when we discuss the morphology, so you can wait for a minute. Okay, they are nocturnal omnivores that live in damp places throughout the world. अब ये जो होते हैं ना फ्रॉग्स, जैसे कि मैंने बोला कॉकरोचेस, हम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई आई कीप सेइंग फ्रॉग आई गेस अभी इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया इट वाज विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉग्स, राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कॉकरोचेस, तो कॉकरोचेस जो होते हैं वो बेसिकली नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मीन्स एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। ओमनिवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स विच मीन्स दे कैन फीड बोथ ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड यूजुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे प्रेजेंट इन डैम्प प्लेसेस। ठीक है, थोड़ी सी मॉइस्ट डैम्प places throughout the world, ठीक है, more or less throughout the world, but more commonly near the equators, tropical region में equators के आसपास ज़्यादातर present होते हैं। उसके बाद they have become residents of human homes and thus are serious pests and vectors of several diseases, and they have kind of become residents of members of human home। हमारे घर का सदस्य ही बन चुके हैं एक तरीके से, because usually if you do not keep your kitchens and rooms clean, you would usually see 1 or 2 cockroach lying or moving around. So which is why NCERT kind of says that in a way they have become residents or members of human home, and they're serious pests, काफ़ी सारे serious बीमारी कर देते हैं, they kind of contaminate the food and all। ठीक है, now let's dig deeper and let's dive deeper and let's try and understand the morphology of a cockroach, right। अगर morphology की बात करें बेसिकली, जो कॉकरोच होता है इसकी बॉडी डिविजिबल है 3 पार्ट्स में। तो देयर आर 3 मेजर पार्ट्स, ठीक है। एक होता है हेड रीजन, एक होता है थोरैक्स, एंड देन देयर इज द एब्डोमेन। ओके, सो 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ओके, देखो ये तो हो गया इसका हेड वाला पोर्शन, ठीक है, दिस इज़ यूजुअली द हेड पोर्शन। ठीक है, हेड के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इफ़ आई कुड जूम इट इन आई वुड डेफिनेटली डू दैट। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शो यू। देखो ये वाला जो स्पेसिफिकली पोर्शन होता है ना, ये वाला होता है थोरैक्स रीजन, दिस इज द थोरैक्स वाला पोर्शन। और फिर आप ये देखोगे ये जो ये होता है, ये वाला ये पूरा एब्डोमिनल रीजन होता है। सो यूजुअली आप देखोगे बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यू हैव द हेड, यू हैव द थोरैक्स, दिस इज द हेड, राइट। यू हैव द हेड, यू हैव द थोरैक्स एंड देन यू हैव द एब्डोमेन, राइट। तो मेजरली बॉडी जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फिर बॉडी हैज़ अ हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, बॉडी के ऊपर एक हार्ड काइटिन की एक्सोस्केलेटन है, हार्ड काइटिन की कवरिंग है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे तो देखो विंग्स हैं, तो आपको इतना प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहा, बट इस वाले इमेज को देखोगे, देखो बॉडी के ऊपर काइटिन की पूरी से डेपोजिशन होती है। सो बॉडी हैज़ अ कवरिंग ऑफ काइटिन। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरी जो आपको ब्राउन कलर से जो कवरिंग दिख रही है क्या है? दिस इज एक्चुअली नथिंग बट डेपोजिशन ऑफ काइटिन। ये काइटिन की डेपोजिशन है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इसके, जिनकी बॉडी होती है दैट्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स, जिसको मेटामियर्स बोलते हैं। अब देखो, अब ये मेटामियर वाला ना, 1 सेकेंड। अब देखो इनकी बॉडी जो होती है ना, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होती है। जैसे जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन, सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो ये ना ऐसे छोटे छोटे पोर्शन है ना, ये मेटामियर्स, ये इनको मेटामियर्स बोला जा रहा है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पोर्शन आपको दिख रहे होंगे, इफ आई कुड जूम इट इन, जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी। ठीक है, इनकी जो बॉडी आप दिख रहे हो, ये छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं ना, ये मेटामियर्स हैं। ठीक है, ये मेटामियर्स हैं। ठीक है, सो जो बॉडी आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्टिंक्टली दिख रहा होगा जो बॉडी है, देखो किसमें ऐसे मेटामियर्स में डिवाइडेड है। अब ईच मेटामियर इज फर्दर मेड अप ऑफ मैनी पार्ट्स। तो बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, ईच सेगमेंट को मेटामियर बोलते हैं। और इस तरीके की सेगमेंटेशन कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में दिखती है, इसको बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, wherein the body is divided into certain segments with a serial repetition of at least some organs। ठीक है, और ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन आप मुझे क्या, ओके, so quick question to everybody, can you tell me 3 phylums in animal kingdom which show metameric segmentation? So it's Arthropoda, Annelida, Arthropoda and Chordata।
कॉर्डेट्स, ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा में भी आपको एक्चुअली मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखती है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ठीक। अब मैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो देखो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन को जस्ट ट्राई एंड विजुअलाइज इट, बच्चों बिकॉज ये विजुअलाइज करके बेटर समझ आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसको एक यार क्यूबॉइड से अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, लेट मी जस्ट से द क्यूब तो ऐसा सच प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पे, क्यूब प्रेजेंट है। देखो मैं क्यूब से ना एक्सप्लेन करने की कोशिश इज़ व्हाट आई कैन डू, ठीक है। तो अगर हम क्यूब की मदद से इसको समझने की कोशिश करें, सो लेट्स जस्ट डू इट टुगेदर, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। अब देखना ध्यान से बेटा, समझने की कोशिश करना, बिकॉज ओनली देन विल यू अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज सर के ऊपर से जाएगा। फिर बाद में कहते रहते हैं बच्चे कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, बिकॉज आप समझ ही नहीं रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मग इट अप, राइट, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, समझने की कोशिश करो। सो इमेजिन करो बच्चे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, दिस इज द डोर्सल सरफेस, ठीक है, ठीक है। ये एक पूरा मेटामेयर मानो, इस पूरे को एक मेटामेयर मानो, ठीक है। अब मेटामेयर ना देखो डोर्सल साइड पे, डोर्सल यानी ये तो ऊपर वाली साइड जो होती है, दिस इज़ द डोर्सल साइड, और फ्रॉक की जो नीचे वाली साइड होगी, नीचे वाली साइड विच इज़ फेसिंग द फ्लोर, दैट्स द वेंट्रल साइड। तो ऊपर वाली साइड ये वाली जो होती है डोर्सल साइड होगी, और जो नीचे वाली साइड है विच इज़ फेसिंग द फ्लोर इज़ द वेंट्रल साइड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मुझे अगर कहीं दिखाना हो तो देखो, ये ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस इज़ द डोर्सल साइड, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो हो गया ये होगी डोर्सल साइड, और जो नीचे वाला हिस्सा है विच इज़ फेसिंग द फ्लोर, राइट, ये हो गया इसकी वेंट्रल साइड, ठीक है। ये है इसकी वेंट्रल साइड। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी। तो इतना समझ आया। अब देखो, ये जो मेटामेयर है बेसिकली, ये मेटामेयर के अगर मेटामेयर किसकी बात करें तो मेटामेयर देखो डोर्सल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, डोर्सल साइड पे अगर बात करें तो देखो डोर्सल यानी ऊपर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। देखो बच्चा, अगर मैं बात करूँ डोर्सल साइड की, तो डोर्सल साइड पे आप यूजुअली देखोगे डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है जो डोर्सल, देखो अब अगर हम बात करें डोर्सल साइड की, तो देखो अब मान लो ये पूरा मेटामेयर है, तो ऊपर की तरफ ये जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है इस काइटिनस एक्सोस्केलेटन का, ऊपर वाले पोर्शन को हम बोलते हैं टर्गा। इसको क्या बोलते हैं? टर्गा। ये जो ऊपर की तरफ पोर्शन है विच इज़ प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड, दैट्स रेफर टू एज टर्गा, ठीक है। साइड में रहते, साइड में मैं कोई और कलर ले लेती हूँ। साइड में ये जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, देखो साइड में दो प्रेजेंट है ना, ये जो साइड में जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है दिस इज रेफर टू एज प्लूरा, राइट। सो ऊपर वाली साइड में यू हैव द टर्गा, साइड में यू हैव द प्लूरा, और नीचे वाली साइड में ऑन द वेंट्रल साइड विच इज़ दिस लोअर वाली साइड, ये जो नीचे वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में जो पोर्शन प्रेजेंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टर्ना, राइट। सो बेसिकली एक मेटामेयर किससे मिलकर बना है? एक मेटामेयर में डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है आपका टर्गा, डोर्सल पे प्रेजेंट है टर्गा, साइड पे प्रेजेंट है प्लूरा, और नीचे एक्चुअली क्या प्रेजेंट है? स्टर्ना। विल डू इट वंस अगेन एंड दिस टाइम इन अ मोर एफिशिएंट वे। सो कट एंड एडिट, ओके। अभी काम करते हैं, देखो मैं मेटामेयर को ना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, गिव मी अ मोमेंट, ओके। फॉर एग्जाम्पल इससे इसको एक ना क्यूबॉइड की मदद से समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं ट्राई एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ क्यूबॉइड। देखो अब ना ये जो इधर इसको इमेजिन करो, दिस इज़ वन मेटामेयर, ठीक है। ये एक मेटामेयर है, जैसे ये एक मेटामेयर दिख रहा है, इस मेटामेयर को अब देखो ये 2D है, अब यहाँ से सामने से आपको उसका फ्रंट पोर्शन ही दिख रहा है, बट एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ऊपर वाली सरफेस है, ये देखो नीचे भी तो प्रेजेंट है ना, तो आप इसको पूरा 3D इमेजिन करो। ये तो अपर सरफेस हो गई और नीचे की तरफ ऐसे लोअर सरफेस है, तो इसको एक 3D स्ट्रक्चर की तरह इमेजिन करो, राइट। तो अब इस मेटामेयर की जो ऊपर वाली सरफेस होती है, ये मैंने जैसे कि आपको बताया, ये होता है बच्चा इसका डोर्सल पोर्शन, ठीक है, और नीचे वाला जो होता है, नीचे वाली जो सरफेस होती है दैट्स द वेंट्रल पोर्शन, राइट, द वन विच इज़ फेसिंग द फ्लोर, ठीक है। अब अगर मैं डोर्सल सरफेस की बात करूँ तो जो डोर्सल सरफेस होती है, ऊपर वाली डोर्सल पोर्शन है, ये डोर्सल साइड में जो प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, दिस इज़ एक्चुअली रेफर टू एज टर्गा, ठीक है। तो डोर्सल साइड पे ये जो प्रेजेंट है स्ट्रक्चर, डोर्सल ऊपर की तरफ ये जो पोर्शन प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं टर्गा, ठीक है। तो आप देखो ये जो ऊपरी डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड पे ये जो स्ट्रिप प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्गा। अब साइड में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऑन द साइड्स ऑफ ईच मेटामेयर, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लूरा, ठीक है। तो ये वाली जो साइड्स हैं, साइड की जो कवरिंग्स है उनको हम बोलते हैं प्लूरा, और नीचे ऑन द लोअर साइड ऑफ इट, नीचे अगर मैं बात करूँ लोअर साइड की, तो लोअर साइड पे एक्चुअली में जो प्रेजेंट होता है दिस इज रेफर टू एज टर्ना, राइट। सो दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वन मेटामेयर या वन स्क्लेराइड, ठीक है। तो ईच मेटामेयर, हर मेटामेयर के अराउंड एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन है जिसको स्क्लेराइड बोलते हैं। स्क्लेराइड का जो डोर्सल पोर्शन होता है, द डोर्सल पोर्शन इज एक्चुअली रेफर टू एज टर्गा। डोर्सल साइड पे हमारे पास टर्गा, साइड में हमारे पास होती हैं दो प्लूरा, और नीचे की साइड पे हमारे पास होती हैं एक स्टर्ना, ठीक है। सो
if I ask you what composes or constitutes one sclerite, so one sclerite is actually composed of one sclerite. Sclerite क्या होगी? The covering of the metameres, ठीक है. ये जो आपको एक्सोस्केलेटन की कवरिंग दिख रही है, दिस इज द स्क्लेराइट, राइट. सो एक स्क्लेराइट किसने मिलकर बनाया? एक टर्गा विच इज़ ऑन द डोर्सल साइड. दो साइड में जो प्रेजेंट है दो प्लूरा, और नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट है? वन स्टर्ना. सो वन टर्गा, टू प्लूरा एंड वन स्टर्ना इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वन स्क्लेराइट और द कवरिंग ऑफ वन मेटामियर. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. अब एक स्क्लेराइट दूसरी स्क्लेराइट से कैसे कनेक्टेड है? हाउ इज़ वन स्क्लेराइट कनेक्टेड टू द अदर स्क्लेराइट? इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली एंड इफ़ यू केयर टू पे अटेंशन, यू वुड डेफिनेटली गेट टू सी दैट. ठीक है, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये एक, अगर जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी, तो अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस इज़ वन, यू नो, वन स्क्लेराइट. ठीक है, एक पूरी कंप्लीट स्क्लेराइट है. आपको सिर्फ इसका डोर्सल पोर्शन दिख रहा है विच इज़ द टर्गा. ठीक है, ये दूसरी स्क्लेराइट है, ये तीसरी स्क्लेराइट है. तो अब ये भले एक्सोस्केलेटन की बनी हुई है, बट ऐसा थोड़ी है ये इतनी रिजिड है, ये आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी तो होंगी. तो दे आर इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर, यू नो, विद द हेल्प ऑफ these structures which are referred to as what? Which are referred to as arthrodial membrane. Once again, let's do it together. Let's discuss this once again. Okay, let's do it again. ठीक है, अब देखो बच्चा, अब हम डिस्कस करते हैं ईच मेटामेयर को. तो अगर मैं बात करूँ एक मेटामेयर की, तो एक मेटामेयर के अराउंड आपको एक काइटिन की एक्सोस्केलेटन दिखेगी, राइट. एक मेटामेयर ईच पोर्शन, ये जो अभी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है मेटामेयर, और इस मेटामेयर के अराउंड एक काइटिन की एक्सोस्केलेटन होती है. ईच मेटामेयर हैज़ अ काइटिनस एक्सोस्केलेटन अराउंड है, जिसको हम स्क्लेराइट बोलते हैं. अब देखो, स्क्लेराइट को समझने की कोशिश करते हैं. तो इमेजिन करते हैं लेट अस से कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने के लिए कोई स्ट्रक्चर है क्या. लेट्स से मान लो अगर ये इसको बॉडी कैविटी बना, मान लो ये मेरा मेटामेयर है, इसको समझो, इसको ऐसे समझने की कोशिश करना. ठीक है, ये हमारा मेटामेयर है. ठीक है, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूँ ब्राउन कलर के स्ट्रक्चर से, तो दिस इज़ वन मेटामेयर, राइट. सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली, यू नो, दिस इज़ एक्चुअली वन मेटामेयर, राइट. अब मेटामेयर के अराउंड हमें एक हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन दिखता है विच इज़ रेफर्ड टू एज स्क्लेराइट, राइट. तो अब देखो, इस मेटामेयर के अराउंड मान लो ये एक बॉडी कैविटी है, मेटामेयर है. अब इसके अराउंड आपको काइटिन की जैसे एक्सोस्केलेटन दिखेगी, राइट. दिस हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज़ रेफर्ड टू एज स्क्लेराइट. ठीक है, अब देखो स्क्लेराइट की अगर बात करो तो मान लो ये स्क्लेराइट है, राइट. दिस इज़ द स्क्लेराइट. अब स्क्लेराइट की अगर हम ध्यान से बात करें तो स्क्लेराइट में आप देखोगे तो स्क्लेराइट का जो डोर्सल पोर्शन होता है दैट इज़ एक्चुअली सराउंडेड बाय टर्गा.